वेलकम ऑल, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया हैं? चलिए, बहुत बढ़िया बात है अगर आप लोग बढ़िया हैं। आज मैं आपको देने वाला हूं एक मास्टर स्ट्रोक। स्क्रीन पे क्या दिख रहा है सर? स्क्रीन पे एक्सरसाइज दिख रही है। कौन सी सर? जो बुक में है। अच्छा, हम इस एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे और इससे हमें क्या फ़ायदा होगा सर? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के जितने पैटर्न के क्वेश्चन आ सकते हैं, आई गोना कवर एवरीथिंग so that you will do very well in your exams। ये तो अभी बुक के क्वेश्चंस होंगे। इसके बाद हम लोग जो नया हमारा टॉपिक होगा उसमें हम लोग ट्राई करेंगे CA/CS के क्वेश्चंस को भी सॉल्व करें। अप टू CA/CS सॉल्व करके इसका मतलब सर हम CA बन जाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। बट हमारी नॉलेज इतनी अच्छी होगी कि हमें पेपर में कोई हरा नहीं पाएगा, हमारे मार्क्स कम नहीं आएंगे। फाउंडेशन से हम लोग अपना 11th-12th स्ट्रॉन्ग करने वाले हैं। चलिए बच्चों, बढ़ते हैं हमारे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के क्वेश्चन की साइड। उसको करते हैं पहले ऊपर। 8 यूनिट ऑफ अ गुड। मैंने आपको बताया था, क्या बताया था सर? यही तो बताया था आपने। फर्स्टली राइट डाउन द गिवन पॉइंट्स ऑफ दैट क्वेश्चन। सो व्हाट इज गिवन? It is here. 8 unit of a good are demanded at a price of 7 per unit. That means price of a commodity is given, and here demand of that commodity is given. 8 unit, that means demand is 8 unit and the price is 7 per unit. 7 per unit. That means on the price of 7 per unit of a commodity, we are, that means commodity consumer, not we means consumer. Consumer is demanding 8 unit of that commodity. It is also given ED, that is -1. Oh my god, ये क्या नया है सर? आपने इलास्टिसिटी ही बता दिया, क्वेश्चन में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड दे दिया। हम तो यही हर बार निकालते थे। निकालना क्या है तब इसमें? बढ़ते हैं आगे। ईडी इज गिवन एंड इट इज सेइंग हाउ मेनी यूनिट विल बी डिमांडेड एट द प्राइस ऑफ ₹8। प्राइस इज इंक्रीज्ड 7 to 8 and quantity is nil. Why? As it is asking the demand of that commodity as price of 8. अच्छा, then it is saying use expenditure approach of price elasticity. Oh my god, ये तो कुछ नई बात आ गई सर। यहाँ एक्सपेंडिचर मेथड यूज करना है, कर देते हैं। एक्सपेंडिचर मेथड कहता क्या है? अच्छा सर, जब ED इक्वल टू -1 है, दैट इज लेस देन 1। समझ गए बात? लेस देन 1 इज -1 और ग्रेटर देन 1। सर इट इज लेस देन 1, -1 है। अच्छा, तो यहां हमें याद है the total expenditure came, टोटल एक्सपेंडिचर की बात कर लेते हैं कि यूज एक्सपेंडिचर मेथड है। तो 7 into 8, 8 7 जा 56 सर। कैसे कंफर्म कर लेंगे कुछ बच्चे फटाफट इसको? कुछ लोग कैलकुलेटर लेके बैठे हैं, पेपर में कैलकुलेटर काम नहीं आने वाला। यूज योर ओन मेथड, लिख के करो। 8 into 5, अच्छा 7 है, 5 सॉरी 7 है। 8 7 जा 56। ओके सर, देन हियर इट इज x and we know
In that condition where ED is -1, the total expenditure remain constant. Total expenditure remains constant. बात सही है कि नहीं है? एकदम सही बात है सर, कोई दिक्कत नहीं है इस बात में. Here in this case total expenditure remains constant. कोई दिक्कत इस बात में नहीं सर, बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं है, हम बात समझ गए. ठीक है, अगर आप बात समझ गए देन टेल मी व्हाट इज x. द क्वांटिटी डिमांडेड केम एज द expenditure remain constant, then here it becomes 7. What comes? Answer is 7 per unit. 7 unit. When the price of the commodity becomes to 8 unit from 7 unit, that means there is increase in the price. Due to this effect, the quantity demanded becomes from 8 to 7. There is a lesser demand, right? Okay, note down that thing. Then we will move towards second question. Second question is, a consumer buys 10 unit of a good at a price of 6 per unit. Again, I am saying again and again, firstly write down the given points. What are those given points? It is first, sir, price of that commodity, demand of that commodity. That is okay. Firstly write down two things, price and demand. Then again read the question, what it is saying. For by seeing the question, go forward towards answer. Okay, first price is 10 unit at price 6. Sir, 6 rupees per unit pay. He is demanding 10 unit of goods. Okay, again it is price elasticity is -1, given equal to 1, ED less than 1. Okay, -1 is given, elasticity of demand is given -1, then it is saying 12 unit. What is price? Okay, again use expenditure approach. कोई दिक्कत नहीं है सर, एक्सपेंडिचर पहले पता कर लिया जाए. टोटल एक्सपेंडिचर जिसको कहते हैं हम लोग TE. Okay, 6 10 60 sir. Then what will be multiplied by 12 so that we can get 60? It will remain constant. Again same thing. What you have noticed, sir, expenditure in the previous question is remain constant, as well as in the second question it is remain constant, but both questions are different from each other. As in the previous question quantity demanded is asked, and this question is asking about the price of that commodity when the consumer is demanding 12 unit of good. Okay, so the answer will be what? सर नहीं समझ आ रहा. 60 यूनिट ऑफ गुड, टोटल एक्सपेंडिचर हमारा 60 रुपए अगर हम खर्च करते हैं, 12 यूनिट का गुड खरीदते हैं, तो सर हमारी जो प्राइस होगी वो 5 रुपए होगी. यहाँ 5 आएगा. क्या आएगा? आंसर विल बी 5. ये आपका प्रॉपर आंसर. नोट करिए. Third question, on the price of a good change to 11 per unit,
ओ माय गॉड, ये क्या बता दिया सर, ये कुछ नया दिख रहा है। देखते हैं। द कंज्यूमर डिमांड फॉल फ्रॉम 11 to 7 यूनिट। प्राइस गिवन है और क्या गिवन है, क्यूडी गिवन है, क्वांटिटी डिमांडेड गिवन है। यहाँ एक्सपेंडिचर अप्रोच आया है, टोटल एक्सपेंडिचर निकाला जाएगा अगेन, ठीक है। When the price of a good change to 11 पर यूनिट, पहले कुछ प्राइस रही होगी, अब 11 पर यूनिट हो गया है, पहले से ज्यादा हुआ है, पहले कम रहा होगा। फिर इसने बोला द कंज्यूमर डिमांड फॉल फ्रॉम 11 to 7 यूनिट, 11 to 7 यूनिट, पहले 11 यूनिट का सामान खरीदता था कंज्यूमर यूनिट, फिर 7 यूनिट खरीदने लग गया। दैट मीन सिंपली प्राइस बढ़ी है, उसने पहले ही बता दिया प्राइस बढ़ी है। उसने फिर कहा क्या, उसने कहा ईडी गिवन है -1, अगेन सेम थिंग। अब क्या आएगा सर, अगर ईडी -1 है दैट मीन्स टोटल एक्सपेंडिचर रिमेन्स कांस्टेंट। एक ही बात पे 3 तरह के क्वेश्चन आपको मिल गए। मुझे नहीं लगता इसके अलावा आपको कुछ चाहिए सीखने के लिए, समझने के लिए। अगर एक पैटर्न पे 3 क्वेश्चन डिफरेंट तरीके से अगर लगाए जा सकते हैं दैट मीन्स बाकी कहीं से भी वो पूछ लेगा, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। मान के चलूँ इस बात को मैं, ठीक है, बढ़िया बात है। तो बताइए टोटल एक्सपेंडिचर कितना आया सर। पहले का तो 11 से x को इंटू करेंगे, वो तो हमें ऑलरेडी निकालना है, x क्या है, ठीक है। सेकंड में हम निकाल सकते हैं 11 7 जा 77, कोई दिक्कत नहीं आई सर। तो अगर ये 7 यहाँ होगा तो यहाँ 77 आ जाएगा। टोटल एक्सपेंडिचर रिमेन कांस्टेंट, ये तो कांस्टेंट कर दिया। अगर ये चीज आप 7 आपको नहीं समझ आया कैसे आया, कोई दिक्कत नहीं है हमको, हम ऐसे निकाल देंगे। ये समझ में आया, बोथ आर रिमेन कांस्टेंट, 77 77 रहने वाला है, यहां पहले ही मैंने बता दिया, क्वेश्चन ने बताया। ओके, सो इफ क्यूडी इज 11 एंड टोटल एक्सपेंडिचर इज 77 दैट मीन्स 77 रुपए अगर मैं लगा के 11 यूनिट का सामान खरीदता हूं तो एक की कीमत 7 रुपए आएगी। कोई दिक्कत नहीं सर, बिल्कुल दिक्कत नहीं है। आंसर क्या आएगा 7। कोई दिक्कत नहीं सर, आ गई, बिल्कुल समझ में आ गई आपकी बात। क्वेश्चन नंबर 4, वन गुड price of a good, when the price of a good is 13 per unit, the consumer buys 11 unit of that good. Okay, price is given, I am writing here given things, price is given 13 per unit. Okay, the consumer buys 11 unit of that good, QD is given 11 per unit. Okay, when the price rises to 15, price is raised, increase in the price of 2 unit. Okay, 13 to 15. Okay, the consumer continues to buy 11 unit. Okay, consumer is still demanding 11 unit of a good. Okay, what we have to find is ED. I have written ED, that means simply it is asking about the price elasticity of demand through price method. याद करो, फॉर्मूला बताने की जरूरत सर, चेंज इन P होगा, चेंज इन Q भी पता होना चाहिए, तब तो निकालेंगे। निकाल लेते हैं। चेंज इन प्राइस इज 15 - 12, P1 - P होता है 2 पर यूनिट। क्या डाउट आया? कोई डाउट नहीं आया सर, ये 2 आएगा। ये 0 का चेंज आया, यहाँ 0 का चेंज आया। हाँ सर, फॉर्मूला इज चेंज इन P अपॉन चेंज इन Q अपॉन चेंज इन P इनटू P अपॉन Q।
हमारे पास वो सारी चीज़ें अवेलेबल हैं जो जो हमको चाहिए। हाँ सर बिल्कुल अवेलेबल हैं। फॉर्मूले पे तुरंत पुट करिए इस चीज़ को। चेंज इन क्यू कितना आया है सर, 0 आया। 0 अपॉन पी, चेंज इन पी कितना आया सर, 2 आया है। वी नो पी कितना है सर, इनिशियल पी इज़ 13 एंड इनिशियल क्यू इज़ 11। सॉल्व करिए इसको, कितना आएगा। अब कुछ बच्चे बैठेंगे इसको सॉल्व करने। Why don't you see that here it is clearly given that 0, 0, and if we multiply any digit by 0, always it comes to 0. So simply why don't you write ed equal to 0, ed equal to 0. That is my answer. Why I'll make the question so lengthy and solve it. Here I can see simply that 0 is given, and if we solve this, it always comes 0. Any doubt? Don't waste time on that calculations, that calculation which makes you suffer for your paper. You lost your time. Elasticity of demand or any other numerical which you can do better. You know that how to do, you know how to get the answer. The main thing is you do not remember that those calculations which can be easily solved by just seeing, you make it lengthy by solving it. Check out those things which are no need of solving. Okay, let's move. Question 5. When the price of a good is 12 per unit, the consumer buys 24 unit of that good. What is given? So price of commodity is given, quantity demanded is given. Price is 12 per unit and consumer buy 24 unit. No doubt in that. Okay. If you didn't have any doubt in that, you're a good person. When the price rises to 14, there is change in P. मैंने गिवन के साथ ही बता दिया, इतनी स्पीड आपको रखनी पड़ेगी. Then consumer buys 20 unit of QD, quantity demanded. Sir, change in Q is about -4. क्या डाउट आया? And it is asking price elasticity of demand. Cannot calculate. You can easily calculate. It is given things. फटाफट निकाल के बताइए कितना आया मेरे को. सर चेंज इन Q अपॉन चेंज इन P into P upon Q. Solve it by putting it. Change in Q is given -4 upon change in P is given 2 into initial P is 12 and initial Q is 24. Initial P is 12 and initial Q is 24. 12 1 ja 12, 12 2 ja 24, 2 1 ja 2, 2 2 ja 4, 2 2 cancel, -1 or 1. Sir, it is ED equal to 1. कैसे आया ED equal to 1? You are still forgotten that here it is a minus sign before the whole formula, as I have told you earlier. Don't forget to mention the formula properly. It will makes you gain numbers better. And in paper you will get time step by step marking. Every step is important. Calculation can be made shorter. How? It is only possible if you makes the formula proper, so that examiner can easily know what you are gonna do. After that, if formula is right, he will simply check the answer, not the process. And by the answer, it is always right that you have done right thing right way. If answer is right, formula is right, that means you have done in a right way. Let's move forward. ED यहाँ 1 आया,
बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? आपको करना क्या है, फॉर्मूला आप सही लिखिए, सॉल्यूशन आप काट रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, प्रेजेंटेशन बहुत मायने रखता है। प्रेजेंटेशन सही रखिए, सीक्वेंस में रखिए, शॉर्ट कर दीजिए, एग्जामिनर समझ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ज़रूरी नहीं है यहाँ आपको बताना है 4/2 इंटू 12/24। ओके, 2 ये कैंसिल होगा तो ये आएगा 2/1 इंटू 1/2। फिर इससे इसको कैंसिल करेंगे सर, ये आएगा 1/1 इंटू 1/1। ये 1/1 1/1 करेंगे तो 1 आएगा, फिर ये माइनस आएगा सर, यहाँ ऑलरेडी माइनस था, माइनस माइनस प्लस होता है, फिर ये 1 आंसर आ जाएगा। दैट इज नो नीड, it is a no need of that, there is no need of that. Why sir? We can simply put the formula, uh, put digits what is given according to the formula, solve it directly and put the answer. Let's move forward. Question 6. Okay, मतलब ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। Statement type question, now it is clearly given. This question is saying calculate ED. What is given? Price 9 to 9, change in P is 0, change in Q is 50. Got it? Yes sir, बिल्कुल। Formula is change in Q upon change in P into P upon Q. Is this right? Yes sir. Now if we solve that, change in Q is 50 and change in P is 0 into initial P is 9, initial Q is 100. अब बताएंगे क्या आएगा इसका आंसर। अगेन आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग, मैं इसको सॉल्व नहीं करूंगा। क्यों सर? पहले तो चीज ये देखिए, यहां 0 है, दैट मीन्स आंसर इज सिंपली नियर अबाउट 0। सेकेंड थिंग, इट इज अंडर सम नंबर, इट्स अपॉन। अगर अपॉन केस है दैट मीन्स इंफिनिटी का कंडीशन है सर। इट इज नॉट पॉसिबल टू सॉल्व दैट क्वेश्चन। नहीं तो आप इसको सॉल्व करो, फिर इसको सॉल्व करो, पॉइंटों में लाओगे, करोगे, मैं करके बता दूं आपको। ओके, 9 डिवाइड बाय 100, 9 डिवाइड बाय 100 इज 0.09। देन I gonna solve 50 upon 0. Error. That is simply saying calculator is error. That if calculator cannot solve, how can you solve this thing? You cannot solve. If there is error, that means answer is infinity. Simply. I have given the proof. ताकि कुछ बच्चे शैतान होते हैं, वो कहते नहीं सर हम तो सॉल्व करेंगे। करिए आप सॉल्व, टाइम बर्बाद आपका होगा, तब तक बगल वाला पेपर करके चला जाएगा। फ्रस्ट्रेट होने की ज़रूरत नहीं है, लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। 12th का एग्ज़ाम, चाहे आप टेस्ट लीजिए, एग्ज़ाम लीजिए, कुछ चीज़ें जो मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद बताऊंगा, सारे क्वेश्चन हो जाएं उसके बाद बात करते हैं इसके बारे में जो इम्पॉर्टेंट है। चलिए बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अ कंज्यूमर बायज 17 यूनिट ऑफ अ गुड एट अ प्राइस ऑफ 10 पर यूनिट। प्राइस, क्वांटिटी 17 यूनिट, 10 रुपीज। ओके, when the price falls to 8, the consumer buys 23 unit. That means increase हुआ है, decrease हुआ है। Following law of demand? Yes sir, बिल्कुल। Use expenditure approach and what will you say about the price elasticity of the demand of that good? Okay, तो TE निकालना है, निकाल नहीं लोगे? बिल्कुल निकाल लेंगे सर। 17 इंटू 10 किया
तो आया 170, तो 23 इंटू 8 किया जाए 184। क्या हुआ यहाँ? इंक्रीज ही तो हो रहा है। यहाँ क्या हुआ सर? डिक्रीज इन प्राइस, increase in quantity demanded and increase in expenditure will lead to greater than elasticity. Conditions याद करो, बताने की जरूरत है। 3 कंडीशंस बताई थी आपको, 3 में हर कंडीशन में 2 कंडीशन थी। if there is a rise in price, if there is less in price, decrease in price, and this decrease or increase, what it is doing on the total expenditure, this will show the price elasticity. So if there is a decrease in price due to which the total expenditure is increasing, that means price elasticity of demand is greater than 1. That is my answer. Show me through a diagram. That is x-axis, that is y-axis. I am saying at a price 10 to 8. Here it is 10. And 170, 184. ओके, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा आपको that is 10, it is 170. क्या दिक्कत है? सही है सर। प्राइस कम हो गई, प्राइस ये 8 पे आ गई, लीजिए प्राइस डिक्रीज and here it is 184. I have increased. ओके, लीजिए क्या आया सर? ग्रेटर देन 1 नहीं दिख रहा है आपको? प्राइस डिक्रीज हुई, क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज हुई, ड्यू टू विच द टोटल एक्सपेंडिचर is increasing. That is main thing. What happens to total expenditure due to decrease in price? So if there is any increase in total expenditure due to decrease in the price and the quantity demanded of that commodity is increasing due to decrease in price, this will lead to ED greater than 1. ठीक है, next question. A consumer buys 19 unit. Okay, that means price 11 per unit दिया है। QD कितना दिया है सर? 19 यूनिट दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। When the price rises to 13, price is increasing. In the previous question, price is decreasing. It is buying 17 unit. प्राइस इंक्रीज हुआ तो क्या हुआ सर? क्वांटिटी डिमांडेड में डिक्रीज हुआ एंड दिस विल लेड टू एक्सपेंडिचर अप्रोच दिख रहा है, तो टोटल एक्सपेंडिचर फटाफट निकाल दो। 11 इंटू 19, 209, and 17 into 13, 221. Here it is rising. क्या बात कर रहे हैं सर? फिर से इसको करिए। 11 into 19 is 209 as well as 13 into 17, 221. Okay. Price is increasing, quantity demanded is decreasing, and the total expenditure is increasing. So
what it will become here, ED will be less than 1. This is the case of elasticity is less than unitary elastic. As price of commodity is increasing and this is affecting the total expenditure as increasing. सेम एक्सपेक्ट में दोनों चीजें बढ़ रही हैं. अगर प्राइस बढ़ी तो टोटल एक्सपेंडिचर भी बढ़ गया, तो हमारा वो जो कंडीशन होगा कैसा होगा, बट देयर शुड बी क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीजिंग, ओनली that condition will be less than unitary elastic condition. Moving towards next, read down question, also write down question as well as read it. A consumer buys 9 units of a good. Okay, here quantity is given, that means price is also given. Unit is quantity. 9 unit of good is purchased at 11 rupees per unit. That is per unit sign. When the price falls to 9 per unit, the consumer buys 11 unit. यहाँ तक बात समझ आई. Again it is saying expenditure approach, total expenditure निकालो. 11 9 जा 99, 11 9 जा 99, कांस्टेंट है हमारा. अगर प्राइस इंक्रीज हो रहा है, प्राइस डिक्रीज हो रहा है सर, इंक्रीज कहाँ हो रहा है? Price decreasing, QD is increasing, TE is constant. तो ED कैसा होगा? प्राइस क्या हो रहा है सर? प्राइस इंक्रीज हो रहा है और जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो क्या हो रहा है? प्राइस डिक्रीज हो रहा है, क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज हो रहा है. टोटल एक्सपेंडिचर में कोई चेंज नहीं आया. पहले भी हम 99 रुपए खर्चा करके 9 यूनिट खा लेते थे जब 11 रुपए थे. आज भी हम 99 रुपए ही खर्चा कर रहे हैं, बट 9 रुपए में 11 यूनिट खरीद रहे हैं. अच्छा, तो इक्वल टू 1 का कंडीशन है ये. प्राइस इज कांस्टेंट. ओके, ईडी इक्वल टू 1 हो गया. बढ़े आगे. When the price of good is 7 per unit, यूनिट प्राइस 7 रुपए में 12 यूनिट खरीद रहा था और जब 6 रुपए हो गया तो टोटल एक्सपेंडिचर इज गिवन. When the price fall to 6 per unit, he spent 72. That means here we have to find that. Calculate price elasticity of demand by using percentage method. अच्छा, तो परसेंटेज मेथड यूज करिए. अब लगाइए दिमाग और याद करिए फटाफट. हम एक बात बताइए, छोड़िए उसको, कंफ्यूजन छोड़िए. परसेंटेज मेथड उसने बोला है तो क्वेश्चन तो यही है. P अपॉन Q.
ये हमारा फॉर्मूला हो गया, ये लगना ही लगना है। इनिशियल प्राइस पता है, इनिशियल यूनिट पता है, नहीं निकल जाएगा सर। चेंज इन पी निकालते हैं फटाफट। 6 माइनस 7 है तो -1 आया ये तो। अच्छा, और चेंज इन क्यू निकालेंगे तो ये तो एक्स है। तो अगर 72 रुपये खर्च करके आप ये पा जा रहे हैं तो 72 डिवाइड बाय एक्स 6, 12 यूनिट नहीं पाएंगे आप। जब प्राइस 7 रुपए थी, 7 प्राइस पे 12 यूनिट कंज्यूम करता था, बट प्राइस जब 6 हो गई तब वो 72 रुपए खर्चा करता है। तो इसका मतलब तो यही हुआ सर, अब भी वो 12 यूनिट ही खरीद रहा है। देयर इज नो चेंज इन यूनिट ऑफ दैट कमोडिटी। एंड निकाला कैसे? 72 डिवाइड बाय 6, दैट इज टोटल यूनिट ही इज कंज्यूमिंग। So change in Q is 0 and change in P is -1 into P is 7 and Q is 12। क्या ये क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो पाएगा? बताओ, क्या ये क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा? सर 0 दिख रहा है, मेंशन कर दिया आपने, 0 दिख रहा है तो ED इज इक्वल टू 0। क्या ही सॉल्व करें इसको, हम होशियार हो चुके हैं, हम निकाल सकते हैं। चलिए बढ़िया बात है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। अ कंज्यूमर बाइज 10 यूनिट ऑफ गुड एट प्राइस 9, प्राइस इज 9, क्वांटिटी डिमांडेड इज 10 unit, at price 10 he buys 9 unit। use expenditure approach, comment on the likely shape of demand curve on the basis of measure of elasticity। total expenditure निकालिए फटाफट। 10 9 जा 90, 10 9 जा 90। क्या चेंजेस हैं उनको मेंशन करिए फटाफट। तो सर प्राइस में इंक्रीज हुआ है, क्वांटिटी डिमांडेड में इंक्रीज नहीं हुआ है। प्राइस में इंक्रीज होने की वजह से क्वांटिटी डिमांडेड को कम कर दिया गया एंड टीई रिमेन्स कांस्टेंट, अगेन कांस्टेंट। जीरो। ईडी क्या आया? नहीं सर, 0 क्यों आएगा? आप बताओ। मैंने कहा 0, क्या मैं सही हूं? नहीं सर, बिल्कुल सही नहीं है। या तो लेस देन 1 होगा, या तो 1 होगा, या तो ग्रेटर देन 1 होगा। एंड हियर इट इज टी रिमेन्स कांस्टेंट, दैट इज सिंपली मीन्स इंक्रीज in price decrease in quantity demanded will lead to total expenditure remain constant। सर 1 की कंडीशन है ये, क्या दिक्कत आई? इसका आप डायग्राम बनाएंगे? बना नहीं सकते हो सर, ये ऐसे बन जाएगा। यहाँ 10 था तब 9 यूनिट ये लेते थे, मान लो ये 9 था, 9 से 10 यूनिट लेते थे, कम हो गया, ये बढ़ गया तो बन नहीं जाएगा, बढ़ जाएगा। चलिए, अ कंज्यूमर बाइज 20 यूनिट ऑफ अ गुड एट अ प्राइस 5, प्राइस इज 5 पर यूनिट, क्वांटिटी इज 20, ही इनकर्स एन एक्सपेंडिचर ऑफ 20, 120 का एक्सपेंडिचर करता है व्हेन ही बाइज 24 यूनिट। अच्छा, the expenditure is given of 120 यूनिट। 24 यूनिट के लिए 120 रुपए खर्च कर रहा है अगर, तो व्हाट इज द प्राइस सर?
Sir, price will be 120 divided by 24. Price into quantity equal to total expenditure. So x equal to 120 divided by 24. ये तो सही बात है. 120 divided by 24 is 5. Sir, price is not a changing, constant, but quantity demanded is increase and total expenditure is increasing. कंडीशन बताइए, फटाफट याद करिए कैसा कंडीशन होगा. सर इन्फिनिटी का. यहां मैंने क्यों इन्फिनिटी बोला सर? लेस देन 1 ग्रेटर देन 1 क्यों नहीं बोला आपने? ईडी इक्वल टू इन्फिनिटी. कैसे? यहां देखिए इसने क्या बोला है. कैलकुलेट द प्राइस इलास्टिसिटी बाय परसेंटेज मेथड. It is not saying that use expenditure method. When it is saying about expenditure method, I use expenditure method. आप इस तरह से करिए तब वो यूज़ होता. ईडी इक्वल टू क्या आएगा? यहाँ एक्सपेंडिचर मेथड को भूल जाइए आप. यहाँ सिर्फ प्राइस क्वांटिटी की बात करेंगे अगर, तो कैसा आया? ये आपने डायरेक्ट इन्फिनिटी कैसे बता दिया ये भी बताइए. चेंज इन पी निकालिए फटाफट. क्या आएगा? मैंने यहीं से सॉल्व कर दिया इसको. चेंज इन पी क्या आया? 0 आया सर. ईडी क्या आएगा? चलिए आपको डायरेक्ट बताता हूं कैसे मैंने सॉल्व किया. मैंने आपसे कहा चेंज इन पी निकालिए, 0 आएगा सर. चेंज इन क्यू निकालिए, 4 आएगा सर. चेंज इन क्यू अपॉन चेंज इन पी इंटू पी अपॉन क्यू. ये सिंपल सा फॉर्मूला होता है. इसको कहिए तो मैं बड़ा बड़ा लिख दूं. ये लीजिए मैं बड़ा बड़ा इसको लिख दे रहा हूं. चेंज इन क्यू अपॉन चेंज इन पी इंटू पी अपॉन क्यू. कुछ बच्चे अब यहाँ लिखेंगे इक्वल टू में. चेंज इन क्यू 4 आएगा, चेंज इन पी 0 आएगा सर. यहाँ इंटू पी कितना है? 5 है. और क्यू कितना है सर? 20 है. मैंने ये चीज़ यहीं देख लिया. ये 0 है जो नीचे जा रहा है और ये 4 है ऊपर है. तो कैसा कंडीशन बनेगा? ऑलवेज इन्फिनिटी का कंडीशन बनेगा. कोई बताने की ज़रूरत पड़ती नहीं पड़ती सर, हम ये सॉल्व कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 13. अ कंज्यूमर बायस 10 यूनिट. प्राइस 10 है. 10 यूनिट खरीद रहा है. क्यूडी प्राइस. ही इनकर्स एन एक्सपेंडिचर 200 ऑन 20 यूनिट. कितना? 200 रुपये खर्चा करता है, तब भी वो 10 ही रुपये तो कमा रहा है. कमा नहीं रहा है. प्राइस 10 ही थी तब भी 0. सर देख के ही पता चल गया. आगे क्या बोल रहा है? प्राइस इलास्टिसिटी कंज्यूमर परसेंटेज मेथड है. बाय परसेंटेज मेथड. डू नॉट यूज शॉर्ट ट्रिक्स. अगेन आई एम सेइंग, मैं क्वेश्चन समझा रहा हूं, सॉल्व करिए अपने से, अपने तरीके से, प्रॉपर सीक्वेंस में. बस यहाँ आपको सॉल्व करवाने का रीज़न ये है कि आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ जाए कि क्वेश्चंस को आप रीचेक कैसे कर सकते हैं कि वो सही है या गलत. क्वेश्चन तो आपको फॉर्मूला लगा के ही सॉल्व करना है. फॉर्मूला लिखिए, पुट करिए और उसके बाद आंसर लिखिए. चलिए परसेंटेज मेथड से इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? चेंज इन क्यू अपॉन चेंज इन पी इंटू पी अपॉन क्यू. इसको सॉल्व करेंगे सर. चेंज इन क्यू आ रहा है हमारा 10 यूनिट का. 10 अपॉन चेंज इन पी 0 इंटू पी 10 10 1. ये सॉल्व किया तो इन्फिनिटी आ गया. ईडी इक्वल टू इन्फिनिटी. बढ़े आगे. बिल्कुल. A consumer buys 14 unit of a good at a price 8 per unit. Price is given 8, quantity is given 14. 7 at price 7 per unit. 7. He spent 98. Total expenditure is 98.
तो 18 को 8 को 14 से इंटू करो, 14 8 जा 112 सर. And if we check total expenditure in 98 and quantity demanded, we have to find, divide by 7 कर दो, 14 7 जा 98. It is new. Here I have taken a new. ये आया कैसे सर? 98 डिवाइड बाय 7 से आया. चलिए कोई दिक्कत नहीं है. अगेन इट इज सेइंग यूज परसेंटेज मेथड, तो हमको ये चीज़ भूल जानी है एकदम कि हमने ये निकाला भी था. निकाल दे रहे हैं फटाफट. कैसे होगा? चेंज इन क्यू अपॉन चेंज इन पी इंटू पी अपॉन क्यू. सर यहाँ माइनस का साइन जरूर लगाइएगा, भूलिएगा मत. तो चेंज इन क्यू इज गिवन, कांस्टेंट है 0 है सर. ये चेंज इन पी कितना आया? चेंज इन पी इज 1 इंटू पी इज 8, क्यू इज 14. सर सिंपल सी बात है, यहाँ 0 आ गया है, ई डी इक्वल टू 0. नहीं तो मैं इसको 2 4 जा 2 7 जा 4 7 हो ही नहीं रहा सर, पॉइंटों में आ रहा है. भूल जाइए ना, यहाँ 0 आ गया, ई डी 0 है, सिंपल. अब इसने एक चीज और बोली है कि डिमांड कर्व कैसा बनेगा. कमेंट अपॉन द शेप ऑफ डिमांड कर्व ऑन द बेसिस ऑफ दिस इंफॉर्मेशन. निकाल नहीं लेंगे. ईडी 0 कब होता है? क्या कांस्टेंट है? क्वांटिटी डिमांडेड कांस्टेंट है. सर क्वांटिटी यहां होती है, प्राइस यहां होती है, ये कांस्टेंट रहेगा, ये तो फिक्स हो गया. फिर वो जो चेंज आ रहा था वो यहाँ से आ जाएगा. ये लीजिए, मान लीजिए पहले 8 रुपये था, अब 7 हो गया, डिक्रीज हो गया, सिंपल. वर्टिकल लाइन बनेगा, किस पे बनेगा सर? वाई एक्सिस के पैरेलल में बनेगा. एनी डाउट? नो सर, नो डाउट. 15th क्वेश्चन. A consumer buys 18 unit of a good at a price 7 and when the price rises to 8 he buys 7. सर प्राइस गिवन है 7, 7 से फिर 7, 8 है सर. प्राइस यहाँ बढ़ी है ना, और क्वांटिटी ही इज demanding 8 unit when the price is 7 and when the price becomes rising to 8 he demands 7 unit. He is decreasing expenditure approach. 8 7s are 56 constant. क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत आई? As TE is constant and it seems the condition of the condition लिख दो, the condition कैसी कंडीशन बनी है वो बताइए आप. प्राइस इंक्रीजिंग, QD डिक्रीजिंग, TE कांस्टेंट 0. सो याद आ रहा है कुछ? हाँ सर आ रहा है. सो ED इक्वल टू 1. कितना टाइम लगा हमको सॉल्व करने में क्वेश्चन? बहुत ही कम टाइम लगा. यहां तो बात हो गई, क्वेश्चंस खत्म. आज का लेक्चर यहीं खत्म करेंगे. बट जाने से पहले कुछ छोटी बात. पेपर जब आप करेंगे कभी भी मेंशन गिवन थिंग्स, आफ्टर दैट राइट डाउन फॉर्मूला, सॉल्व इट separately, give answer like ED equal to 1. I have taken answer. Okay.
if there is any explanation, give explanation about that separately. About solution सेपरेटली. एक पेपर देने का तरीका बता दिया मैंने. एक गिवन है फॉर्मूला, सॉल्यूशन, सॉल्विंग, एक्सप्लेनेशन ऑफ दैट, फिर आंसर, देन एक्सप्लेनेशन. ये 5 चीज़ें अगर आप एक सीक्वेंस में करते हैं बढ़िया तरीके से, आपका प्रेजेंटेशन अच्छा होगा. प्रेजेंटेशन अच्छा होगा, आंसर सही आएगा, आपको भी कहीं कंफ्यूजन नहीं होगा. और कहीं कंफ्यूजन नहीं होगा, दैट विल लेड टू द राइट आंसर एंड इट विल मेक यू डू बेटर इन एग्जाम्स. थैंक यू सो मच. आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं. मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और भी बढ़िया क्वेश्चंस के साथ में, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा हैं, टाइम कम होगा हमारे पास. क्योंकि मैं चाहता हूँ आपका जो माइंड लेवल है वो इतने हाई तक के क्वेश्चन सॉल्व कर सके, ताकि आपको पेपर में अगर छोटे क्वेश्चंस आए आपको ये ना लगे कि ये मैंने पैटर्न पढ़ा नहीं है. वी गोना सॉल्व एवरी पैटर्न. थैंक यू सो मच. मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में.